कौन Bharti Mama, Ravinder sir, Robert sir, Chitra Singh. आप कर लो।
Ritika, are we good to go? Ritika, are we good to go? Ritika, there? Ritika, are you there? Ritika, are we good to start? खाना तुम खा लो खाना खाने का मन नहीं करता चाय चाय बच्चा लोग के लिए चलाती है, दुकान पे रेडी होकर बैठा है। फिर से दूध मांगता नहीं करता दूध बांट लेकिन एकदम गाढ़ा उतना है नींबू का चाय बरड़ बरड़ मार ले मल्ली बना Ritika, are we good to go? Ritika, I guess Ritika is having some connection problem. She will join back in just few minutes. आ गया। Oh, hi. Hello everyone. Where the mind is without fear and the head is held high, and where the knowledge is free, where the world has not been broken, but into the fragments by narrow domestic walls. Good evening, everyone. I hope everyone present here are good and sound. Happy to see you all here, and I heartily welcome everyone. Wishing you a very warm and happy Independence Day. बहुत नामी लगा Now I would like to call Mr. Suparan, co-founder of Beloved This organization, for the brief of the organization. Over to you, Suparan. Good morning, everyone. Or should I say good afternoon? I bet not a lot of people can hear me. Am I audible to everyone? Just give me some response so that I'll be good to go and I'll take this You're over. loud and clear, Suparan. Yes, loud yes. and clear. Oh, hi. Hello, everyone. So good Yes. evening once again. And thank you for coming. Wish you a very, very happy Independence Day. And I hope everyone has joined so that I could start the proceedings of the day. Okay. So once again, congratulations to everyone
today we are celebrating Independence Day. And on this day, we decided that we'll host a very entertaining, very special program of ours. And with that, we are in between all of us. So I hope the next few hours will be very entertaining and very special to every one of you. So first of all, I'll give you a brief introduction of my organization, Bilatsries. हमारी Bilatsries organization पिछले 4 सालों से काम कर रही है, जिसमें हम डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, विमेंस के लिए काम करते हैं और ओल्ड एज पीपल के लिए भी काम करते हैं. From past 3 years, we have been registered and we are doing this on a regular course with all due diligence from our side. I hope I am audible and visible to everyone. Yes, Suparan, go ahead. You are perfectly Great. audible and perfectly visible. Oh, thank you so much. So today on the eve of Independence Day, we have decided to host a very, very special event. And I would literally want to thank everyone from the bottom of my heart who is here as participants or as our guest of honors. And I would literally want to take the name of the guests and thank you so that, you know, it is more of an encouragement to them. And I would literally love to take the names of Mr. Chitra Singh Sahu, Mr. Rahul Dumpa, Shrimant Jha, Kritika Khanna, Ajay Raj and Umesh Sharma जी, कि आप वक्त निकाल के आज हमारे बीच यहाँ बैठे हैं और हमारे इस इवेंट को अपनी प्रेजेंस देखिए 4 चांद लगा रहे हैं. So Karan, sorry for interruption. One more guest with us, Vishal Sharma. Okay, Ishan Sharma also. So thank you everyone and thank you for being a part of this event. I hope this will be at least memorable thing for you. So with this, I'll give you a brief introduction of my organization and we'll start the proceedings. Okay, great. So our organization has 3 main aims. We believe in social inclusiveness, that everyone in this world and every children should be a productive part of the society. That is the reason we started our organization and we still strive towards achieving that goal. Our next goal is to unstigmatizing disability, in which we believe that, you know, every single person should be made a productive part of the society, because independence gives you that freedom and independence, not just of the nation, but also of the body, also of the minds. That gives you that freedom, that confidence to thrive toward excellence and be the better version of yourself. And third, but the most important one, is we want to create awareness towards disabilities. Because India is like a growing economy and still we think that, you know, children are the burdens of the parents. तो बच्चों की परवरिश तब तक करनी चाहिए या तब तक करनी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, जब तक वो मतलब स्टेब्लिश ना हो जाएं, ये चीजें ना हो जाएं. बट उस चीज में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द नॉट सो मच नॉलेज अबाउट दीज डिसेबिलिटीज, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस चीज के लैक होने की वजह से ये चीजें प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाती, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, और जिस वजह से बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिस वजह से वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते और सोसाइटी का प्रोडक्टिव पार्ट नहीं बन पाते. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि हर किसी को एटलीस्ट अपने नॉलेज, अपने राइट्स के बारे में नॉलेज हो. So these are the basic goals and these are the basic aims of our organization. And as you all know that Ritika Sharma is the face of our organization and you all know her very well. So I'll request her to take over from here now. Thank you. अब मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नेत्रा टिक्कू को बुलाना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए. ओवर टू यू नेत्रा. दिल की खुशी का लबों से कर रही हूँ इजहार, दिल की खुशी का लबों से कर रही हूँ इजहार. आप सभी को नेत्रा टिक्कू का प्यार भरा नमस्कार. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. और
कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी Sorry for परफॉर्मेंस। interruption. If you switch Hello. on your camera, then it's good for us too, to show your talent too also. ओके। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं नेत्रा प्लीज, if that's convenient to you. Okay, great. अब हम सभी देख पा रहे हैं नेत्रा को। ओके। सो मैं ए मेरे वतन की लोगो सॉन्ग गा रही हूँ। Great. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, धन्य जवान वो अपने, उनकी जवानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों। जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना।
Wow, thank you, Netra, for this melodious performance. Now I would like to introduce our first guest of the day. She is first female para-rower, banker, and artist by passion, Ms. Ritika Khanna. Let's see her journey, please. हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका खन्ना और आप मुझे जानते हैं एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोवर। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ थ्रू बिलवड ग्रेस। थैंक यू सो मच ऋतिका फॉर इनवाइटिंग मी। ऋतिका चाहती थी कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ एज अ पैरा रोवर और एज अ पर्सन मैं अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करती हूँ एंड हाउ इट ब्रिंग्स चेंजेस इनटू माय लाइफ बीइंग अ पैरा रोवर। तो आप लोग सब मुझे जानते हैं एज अ पैरा रोवर। अगर मैं पैरा रोइंग की बात करूं तो शायद ये मेरे साथ एपिसोड 2003 में ही शुरू हो गया था, जब मैंने एक एक्सीडेंट में अपनी टांग खो दी थी। उस दौरान मेरी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी, बहुत चैलेंजिंग हो गई थी, बिकॉज़ मुझे ऑल टुगेदर अपनी पूरी लाइफ को नई तरह से शुरू करना पड़ा था। मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए हर चीज़ एकदम नई हो गई थी। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में चलना सीखता है, शायद वो चीज़ एकदम 18 ईयर्स के बाद रिपीट हो रही थी। तो उस टाइम पे सडनली मेरी स्कूल डेज़ में ऐसा हो जाना और मेरी लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी आफ्टर दिस एपिसोड। तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। उसके बाद आई वाज इन क्लास 12th जब मेरे साथ ये एपिसोड हुआ था। उसके बाद आई थिंक मेरी विल पावर ने मुझे बहुत हेल्प करा दोबारा खड़े होने में और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने में। तो मैंने उस समय ही राइट आफ्टर 6 months ऑफ माई एक्सीडेंट मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और अपना 12th की पढ़ाई मैंने ख़त्म करी। उसके बाद आई जॉइंड अ कॉलेज एंड फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन। Later, I took up masters in HR, or I think when I finished my studies, I decided to go and pursue something that was related to myself. तो मैंने अपनी लाइन शुरू करी, मैंने अपने लिए एक नया तरीका स्टार्ट किया जीने का। मैंने अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी बनाया। और उस टाइम पे जब मैं जम्मू में किसी भी जिम ओनर के पास जाती थी और बात करती थी उनसे अपनी सिचुएशन के बारे में, और मैं जिमिंग करना चाहती थी, आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद फिटनेस। उस टाइम पे आई रिमेंबर कोई भी जिम पर्सन ऐसा नहीं था जो मुझे अलाउ करता था जिम में आने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि शायद मेरी कंडीशन में क्या मैं जिमिंग कर पाऊँगी। तो उस समय मैं उनसे ये कहती थी कि आप इस बात की फिक्र मत कीजिए कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, आप सिर्फ मुझे गाइड कीजिए और मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं आपको करके बताऊँगी। तो उस टाइम पे मैंने आई रिमेंबर एक जिम ज्वाइन किया और मैं हर दिन खुद को नए नए चैलेंजेस देती थी कि अगर मैंने कल कोई एक्सरसाइजेस करी तो मैं उन्हें रिपीट करने की कोशिश करती थी या उनमें नया एक चैलेंज डालने की कोशिश करती थी। तो उसी टाइम पे आई थिंक मैं एक जिम से दूसरे जिम में मैंने स्विच किया, और उस दौरान मैंने अपनी कुछ फिटनेस वीडियोस अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करना शुरू करी और बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग थे जो उन वीडियोस को फॉलो करते थे, उन वीडियोस को देखते थे। तो इट केम टू मी एज अ मोटिवेशन टू इंस्पायर दोज पीपल कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और वो भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें। तो मैंने और ज़्यादा फिटनेस वीडियोस अपलोड करना शुरू करी उस पीरियड में। जो भी मैं चैलेंजेस अपने साथ करती थी, मैं कोशिश करती थी कि वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूं, और जो दूसरे स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो वीडियोस देखें और वो भी ट्राई करें।
तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे जब बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आते थे। काफ़ी सारी मेरी आज प्रेजेंट डेट में जो फ्रेंड्स हैं हु आर पार्ट ऑफ द स्पेशली एबल्ड ग्रुप हु आर माय बेस्टीज एट प्रेजेंट जॉइंड मी ड्यूरिंग दैट टाइम। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनके साथ भी वर्कआउट करती थी। दो हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में हैं, लेकिन हम प्रेफर करते थे कि हम लोग ऑनलाइन कुछ वीडियोस शेयर करें और मैं उनको भी कुछ वर्कआउट करवा सकूं। उसी दौरान शायद वन ऑफ द मेंबर्स from the TCO group. The TCO group is the challenging ones which is running all over India. और हम उसमें सब स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो एक दूसरे की मोटिवेशन है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। तो उसमें मुझसे वहाँ पे एक एडमिन थे उस ग्रुप के जिन्होंने मुझे कहा कि आर्मी वांट्स अ पैरा रोअर फ्रॉम द कंट्री एंड दे वांट अ फीमेल पैरा रोअर। तो रोइंग के बारे में मुझे तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने फिर भी कोशिश किया, मैंने उनसे बात करी। मेरे मेंटोर रहे हैं जो कर्नल गौरव दत्ता, उनसे मेरी बात हुई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अबाउट पैरा रोइंग एंड आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया ऑफ कोर्स ये चीज़ परस्यू करने में। तो मुझे लगा कि शायद मेरी फिटनेस को लेकर मेरे लिए एक और नया चैलेंज होगा इसे एक्सेप्ट करना। तो मैंने पैरा रोइंग शुरू करी। आई ट्रेन फॉर फ्यू मंथ्स एंड उसके बाद जम्मू में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं ही नहीं फॉर पैरा रोइंग और रोइंग। तो जब भी मैं घर आती हूँ मैं अपनी जिमिंग पे ध्यान देती हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे लिए पैरा रोइंग एक सरप्राइज़ की तरह आई। मैं एक नॉन स्विमर हूँ और पैरा रोइंग जो कि पानी में ही हम बोट चलाते हैं, तो पहले मुझे ऐसे लगता था कि शायद बहुत इजी होता है और मैं कर लूँगी। लेकिन आई रिमेंबर एक बारी मेरे साथ एक ड्राउनिंग एपिसोड हो गया था जिसमें मेरी बोट पलट गई थी और क्योंकि मैं एक नॉन स्विमर हूँ तो मैं स्विम नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज सेव्ड बाय माय कोच। उस टाइम पे एक सेटबैक था मेरे लिए क्योंकि मुझे पानी से डर लगने लग गया था और एक और चैलेंज था उस समय मेरे लिए अपनी लाइफ को फिर से एक नए तरीके से देखने का, क्योंकि मैं पानी से डर रही थी लेकिन मैं खेलना भी पानी में ही चाहती थी। तो मैं पैरा रोइंग छोड़ना नहीं चाहती थी, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आई डिसाइडेड टू ओवरकम दिस चैलेंज। मैंने इसको बहुत सोचा, थोड़ा ध्यान दिया, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी से इतना नहीं डरना है। आई थिंक मैंने बीच में स्विमिंग लेसन्स लेना भी शुरू किए, लेकिन हाँ वो फोबिया मेरे अंदर डेवलप हो चुका था। हेलो कृतिका जी, आई होप आपको भी वीडियो देख के इतना अच्छा लगा होगा जितना अच्छा हमें लग रहा था। Yes, thank you so much, Upayan. Thank you so much, and Happy Independence Day to everyone. हैप्पी इंडिपेंडेंस present डे here. टू यू टू। तो हम जब वीडियो देख रहे थे ना और जब हम आपको नोटिस कर रहे थे तो खुशी दोनों जगह डबल हो रही थी। तो हमें लगा Yes, कि हम आपको ही absolutely. बोलेंगे कि यू शुड डू द ऑनर्स बाय योरसेल्फ। तो हमने Right. वीडियो बीच में ही रोक दिया है ताकि सभी आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल, and I'm really happy to be part of such a virtual event. कुछ नया हर बार मिल रहा है हमें, आई थिंक डिजिटल मीडिया पे करने के लिए, एंड दिस इज वन सच इनिशिएटिव जहाँ पे इतने सब लोग एक साथ हैं, एंड आई am blessed to meet other athletes also, para athletes also, who are present here. So again, a very happy Independence Day to all of you. And Netra, thank you so much for such a wonderful beginning, such a wonderful song. It is always a pleasure. आपकी वॉइस को सुनना बहुत मजा आता है, and thank you so much for the song, Netra. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक्चुअली हम भी ये वर्चुअल इवेंट पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले हम फिजिकल इवेंट्स करते थे और जो वर्चुअल इवेंट्स का प्रेशर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वी आर आल्सो ट्राइंग इट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। So we are very thankful to you that you came and you became a part of this event. It's always a pleasure to be part of Beloved Grace. It's always a pleasure to be part, and always it feels happy to be among such people who are doing such great things with such great initiatives. All the best to you guys, and just keep shining Thank you. brighter. You guys are doing amazing. तो कृतिका जी, सबसे पहले आपने कुछ व्यूज दीजिए इंडिपेंडेंस डे पे और अपने बारे में भी सबको बताइए, so that people could also know
And from where you come from, what you do, already apart from the video. apart from the video, I think वीडियो में ऑलरेडी आप बहुत डिस्क्रिप्टिव चीजें बता चुके हैं. तो मैं जम्मू से हूँ. मेरा नाम कृतिका खन्ना है. मैं एक पैरा रोअर हूँ जिसने अभी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट करी है. एंड आई हैपन टू बी टाइटल्ड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोअर, विच इज अगेन अ ब्लेसिंग. और अपने देश के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाना या अपने देश का नाम अपने शोल्डर्स पर लेकर चलना is already a biggest blessing in life. जब आपकी पहचान आपके देश से है, लोग आपको आपके देश से जानते हैं, it is always a pleasure. और of course जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब एक सोल्जर को कहा जाता है you are an Indian soldier, और वो जो खुशी उसको अपने फ्लैग को देखकर होती है, we have experienced the same feeling. जब हम लोग चैंपियनशिप के लिए गए थे और हमारे लिए हमारा झंडा हमारी आंखों के सामने था, एंड we were able to hoist the flag on an international land. It is always a blessing and you feel so proud to be part of this country, जहाँ पे इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियन. और जब झंडा सामने आता है तो बस देशभक्ति दिखती है या फिर कुछ नहीं दिखता. तो आई एम श्योर सब यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं. एंड अदरवाइज मैं एक बैंकर हूँ. मैं ग्रामीण बैंक में जॉब करती हूँ और उसके अलावा मेरी लाइफ बहुत ही नॉर्मल सी है, रूटीन लाइफ है जो सबकी रहती है. यस इतना है कि मेरी लाइफ में आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स. मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ, नई नई चीज़ें करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है जब मैं पेंटिंग करती हूँ या डांस करती हूँ या कुछ भी करती हूँ. बस लाइफ में रुकना मेरा मोटिव नहीं है, बढ़ते जाना एक मोटिव है. एंड आई वुड रियली वांट यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं सब लोग बस अपनी जिंदगी में एक नए गोल सेट करते जाइए और उनकी तरफ बढ़ते चले जाइए. जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, सब कुछ आपसे छोटा है. आप बहुत बड़े हैं अपनी प्रॉब्लम्स के आगे. तो अपनी जिंदगी को खुशी से जिए और मजे से दीजिए. बहुत मजा आता है लाइफ में. कीप एंजॉयिंग योर लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन. थैंक यू कृतिका दी. ऑलवेज वेलकम कृतिका. आज शायद मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ बिकॉज मैंने स्काउटिंग से काफी कुछ सीखा है और आज राजकुमार कौशिक सर इस बीच हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. वेलकम सर. मैं आपसे कुछ व्यू चाहूंगी सर. कृपया कर आप हमें सपोर्ट करें बिकॉज सर मेरी हमेशा मोटिवेशन रहे हैं स्काउटिंग में. और मैंने सर को बहुत बार पर्सनली भी बोला है कि सर आप मेरी एक ऐसी मोटिवेशन है जिसने स्काउटिंग में मुझे ऐसी चीजें सिखाई जो मैं इन बच्चों के साथ यूज कर पा रही हूँ. जैसे क्लैप जेल्स, ये सब चीजें मैं स्काउटिंग से ही सीख के यहाँ पर इस सेक्टर में यूज कर पाती हूँ. तो सर मैं आपसे चाहूंगी कुछ शब्द आप भी बोलें. Thank you, Ritika. And first of all, happy 75th Independence Day to all of you. और मैं काफी टाइम से अभी जो पीछे भी रितिका आपने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल मैं नहीं आ पाया था. और अभी भी मुझे अभी 2 प्रोग्राम और हैं जिनमें मुझे ज्वाइन करना है. तो मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव एक छोटे से स्केल पे शुरू किया. और आप कृतिका खन्ना जैसे जो है नए हमारे जो मान है, मैं बोलूँगा यदि मैं कहूँगा ये देश की शान ही नहीं है, मान भी है. और ऐसे व्यक्तित्व को आगे लाना और उनको मोटिवेट करना बहुत ही अच्छा काम है आप लोगों का. और डेफिनेटली भारत की तरफ से मैं कृतिका आपको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पहली नहीं रहेंगी. आपके साथ में और भी गर्ल्स जो हैं वो आगे आएंगी पैरा रोइंग के लिए. और यदि भारत से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली हम भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए. और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. आज आज़ादी का दिवस है और कृतिका ने जो एक बात बोली है कि बहुत अच्छी है कि खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए. यही मेरा पैगाम है आप लोगों को. और मैं आशा करता हूं कि आप खुद भी मुस्कुराएंगे और दूसरों को मुस्कुराने का भी मौका देंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you so much, sir. There is no greater difference in society than the inability to see a person at all. अब मैं इसी के साथ वितुपन सोनवाल की वीडियो को शेयर करने के लिए कहूंगी टेक्निकल टीम से.
कला की कोई जाति या भेद नहीं होता, क्योंकि ये असम से है बच्चा और इसने असामी लैंग्वेज में किया। पहले कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं असामी बोलता हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है। मैंने बोला कि आप में जो आर्ट है वो आप आगे लाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने सुनना है वो आपके मेलोडियस वॉइस को सुनेगा, ना कि आपकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा। तो थैंक यू बितुपन। Now I would like to call Mr. Chitrasen Sahu. He is a mountaineer, para-athlete, and inclusive disability activist. Please share his video. Because of some technical issues, he is not with us. So we forward this program. Now I would like to call. I think you have to found something nice in our Zoom meeting. Sharon Charitable Trust. इन सब बच्चे कब से फ्लैग्स कर रहे हैं फ्लोट, और हम कब से देख रहे हैं, ये कब से ईगरली वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की परफॉर्मेंस देखते हैं, ताकि जो बच्चों की मोटिवेशन जो है वो बनी रहे। तो मैम प्लीज। उस पे मेरे वाले पे नहीं है।
कामयाब एक दिन। जय हिंद। Wow, that was such an amazing performance. रितिका जी डांस भी साथ में कर ले कि बाद में? जी सर, अगर कंफर्टेबल कर सकते हैं, अगर बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपका ऑर्डर हो उसी तरीके से करें। बच्चों को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, फिर उनका और जोश आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। Next, Tushar Sharma is an international cricket player, para taekwondo player. He's bronze in different indoor cricket, national and Bollywood player. Please share your journey and us, sir. Vishal sir, are you there? I think he is not here. So I will call Chitrasen Sahu, sir. Chitrasen Sahu, sir, please share your journey because we waited for because of सॉरी, अभी मेरा थोड़ा कॉल आ गया था अभी कुछ देर पहले, तो मैं उधर चला गया था क्योंकि मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड था ना। मैं टाइमिंग जो है 5:50 से बोला था आपने, तो बीच में मैं अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए मिस हो गया था, मतलब बाकी लोग को मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। बाकी मैंने कृतिका को सुना, कृतिका को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्टोरी समहाउ वैसे ही चल रही है, बिकॉज एक जो साइकोलॉजिकल जो चीजें होती है और जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होती है कि हम कैसे चीजों को चैलेंजिंग हमारे लिए होता है और लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो आई थिंक वो चीज जो कृतिका के साथ हुआ, वो चैलेंज मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक हर वो एम्प्यूटी हर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती है। तो ऐसी मेरी भी जर्नी है। 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देन मेरा लेग एम्प्यूट हुआ और तब मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था। मुझे स्पोर्ट्स और डिफेंस के लिए काफी ज्यादा पैशनेट हूँ मैं, तो उसके लिए काफी इंटरेस्ट था मेरा और इससे पहले मैं एयरफोर्स सेलेक्टेड भी था, बट समहाउ उसे ज्वाइन नहीं किया मैंने कि मुझे लगा था कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन करूंगा। तो बट वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो डिफेंस वाला सपना था वो थोड़ा छूट गया। पर एक जो चीज थी जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती थी, आज इंडिपेंडेंस डे है तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। और आई थिंक वो इंडिपेंडेंस वाली बात है, फ्रीडम वाली बात थी जो मेरे को काफी ज्यादा हिट किया बोल सकते हो, कि मैं हमेशा वो पहले जैसा ही बनना चाहता था। तो वो जो चीज थी मेरे अंदर की, वो काफी कुछ मेरे को मोटिवेट किया। वो एक सिंगल रीजन है जिस कारण मैं इवन हॉस्पिटल बेड में रहते हुए भी मैंने अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचा, मैंने एग्जाम दिलाने के बारे में सोचा, बहुत सारी प्रिपरेशन मैंने बिस्तर में लेटे लेटे स्टार्ट की एंड उसके जस्ट 3 महीने बाद से मैंने एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट की, कुछ एग्जाम क्रैक किए। तो उसके बाद फिर बाई प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ के स्टेट PSU में। एंड समहाउ मुझे पहले जैसा ही घूमना फिरना पसंद था, तो मैंने छोटे छोटे ट्रैक ज्वाइन किए और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट किया कि, और इस बीच सबसे खास बात ये रही कि मेरे दोस्त कभी मुझे छोड़ते नहीं थे। इट मीन्स कई बार होता है ना जब आपको आसपास के लोग आपके लिए बर्डन टाइप का फील करते हैं, तो आई एम लकी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और वो जो चीज़ थी काफ़ी मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। एंड इन बिटवीन बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि, तो ये क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं, तो मेरे को तो उतना इफेक्ट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे जब ट्रैक करना स्टार्ट किया, ट्रैकिंग में जब अच्छे एलिवेशन गेन करना स्टार्ट किया सक्सेसफुली, फिर हिमाचल में मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैंने 2 माउंटेन, अभी हमने 7 समिट का टारगेट किया था, तो माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, और माउंट कोजियस को क्लाइंब किया है। और अभी मैं 17 को ही एक दिन बाद जस्ट अभी माउंट एल्ब्रूस के लिए निकल रहा हूँ, जो कि रशिया में है और यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके साथ साथ मैं पैरा एथलीट भी हूँ, व्हीलचेयर बास्केटबॉल का छत्तीसगढ़ स्टेट का कैप्टन हूँ, और हम यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो 3 साल से व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम जा रही है और हम यहाँ से लोगों को जाके ट्रेन करते हैं और
एथलीट हम तलाशने की कोशिश करते हैं। साथ में मैं ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको मुझे जो लगता है, जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ। तो मैं साथ में 14,000 फीट से स्काई डाइविंग करने का भी रिकॉर्ड है। मैं सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर भी हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैं वो करने की कोशिश किया हूँ और उसमें सफलता मिली है मुझे। तो मुझे लगता है कि हर किसी को, इवन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिसेबिलिटी, कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेशन टाइप की चीजें कुछ होती नहीं है कि वो हमारे थॉट प्रोसेस से हम खुद क्रिएट करते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं। तो कोशिश करना चाहिए, जो पसंद है वो चीज करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है सफलता जरूर मिलती है। तो इसके साथ साथ मैंने जो मिशन जो मेरा है उसे मैं मिशन इंक्लूजन का मैंने नाम दिया है, जो 7 समिट का मिशन है। तो बेसिकली मोटो ये है कि हम कैसे अपने आसपास में जो इंक्लूजन का एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, कैसा एक इंक्लूजन का वातावरण हम निर्मित कर सकते हैं कि कैसे हमारा छोटा सा बिहेवियर सामने वाले आदमी को हर्ट कर सकता है या सामने वाले आदमी को डिप्रेस कर सकता है, कैसे हम हमारे बिहेवियर से छोटे छोटे बातों से मतलब हम इंक्लूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं और उसके कारण जो है एक समाज का एक तबका जो है वो पीछे रह जा रहा है। और कई बार हम इवन ट्रांसजेंडर की बात हो या वुमेन एम्पावरमेंट की या फिर ये डिसेबिलिटी की बात हो, हर बार एक चीज जो समस्या आती है कि हम एक वर्ग को छोड़ देते हैं और एक देश के लिए, एक समाज के लिए एक हर हिस्से से हिस्सेदारी आना चाहिए, तो तभी आपका देश का प्रोग्रेस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि, और मैं अपने सारे जगह जहाँ पे बात करता हूँ मैं मिशन इंक्लूजन की बात करता हूँ, जहाँ भी मेरे टॉक्स होते हैं या सेमिनार होते हैं। तो बाकी रितिका जी का और बहुत बहुत शुक्रिया, वो काफी टाइम से मुझे इनवाइट कर रही थी, वीडियो के लिए बोली थी, पर बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। पर थैंक यू सो मच गैस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने अभी जो गाना भी सुना, बहुत बहुत सुंदर सॉन्ग था, मुझे स्कूल टाइम का याद आ गया। और थैंक यू सो मच गैस। और कृतिका को भी ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा उनके बारे में जान के। मैं हालांकि डीसीओ मेंबर मैं हूँ तो उनके बारे में सुनते रहता हूँ। तो वेल डन कृतिका, थैंक यू सो मच कृतिका टीम। Firstly, best of luck for your new venture, because आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी। बिकॉज अगर हम साथ चल रहे हैं, क्या सोचेंगे, तभी हम मंजिल हासिल कर पाएंगे। ये हम सबका मिशन होना चाहिए कि हम आपको सपोर्ट कर सकें और आप अपने मिशन में जब कामयाब होंगे तो ये हमारी भी वो होगी, विनिंग प्राइज टाइप होगा। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जरूर जरूर जरूर, मुझे उम्मीद है कि अगर वेदर अच्छा रहा तो 23 या 24 तारीख को हमारा समिट हो जाएगा, तो रशिया में हम तिरंगा लहराएंगे। हम पिक्चर का वेट करेंगे। और जो तिरंगे वाली बात कृतिका ने कहा ना, वो बहुत ट्रू है। एक्चुअली में वैसी ही फीलिंग आती है अंदर से, बहुत प्राउड फील होता है अंदर से, सेटिस्फेक्शन मिलता है काफी ज्यादा। जो बात चित्रसेन सर ने बोली, ये बात हमने पहले भी बहुत सारी चीजों में नोटिस करी है कि कई बार सोसाइटी का एक तबका आपकी डिसेबिलिटी के आगे नहीं देख पाता। सर, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं उस बैरियर को तोड़ रहे हैं, जिस वजह से सोशल इंक्लूजन प्रमोट करने में और अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बड़ी हेल्प होती है हमें भी। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। Now I would like to call our next performance by Drishti Shikha. Please share her video.
Thank you so much. Now I would like to call Rajendra sir and Bharti ma'am because they are waiting from a very long time for us. Rajendra sir, your mic is off. सर आपकी माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपकी। हाँ सर, एक मिनट हाँ एक मिनट जी सर, टेक योर टाइम सर। ओके सर, ओके। कौन हेलो आई एम राजेंद्र साह फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। I am working with Life Insurance Corporation of India, and I am going to retire in this month. But singing is my profession, singing is my hobby. I am going to sing the song, patriotic song of Mukesh ji, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. I am just starting. Sorry sir, thank you. Wait, बोले हेलो, मैं राजेंद्र सर की वाइफ हूँ, भारती शादिया। वेलकम मैम। Yes, I am just starting. Yes. Okay. Hello. छोड़ो कल की बात, ये गान में छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों के हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग अब छोड़ो कल की बात, कल की बात हेलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए,
अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तान। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पर जल रहा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, आँच बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से दान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। अब भारती जी एक मुकेश जी का गाना गा रही है, ले लो ना साथ में, ले लो मैडम। हेलो हेलो, ओके ओके ओके। हेलो, આજે હંમેશા તો પછી વિખાયેલા। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज जी आ मैम, रही है? सुन पा रहे हैं। जी मैम। ओके। मैंने सबका स्टोरी सुना, तो हम भी अपने तुम्हारे साथ ही हम हैं, और हम अपनी अपनी जिंदगी हम जी लेते हैं, लेकिन क्या है कि मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि जीना बहुत ही आसान है। देखो, हम जी ले तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो हम सब में है हिम्मत और ताकत, और हम करके दिखाते ही हैं। आपके लिंक को करो। फोटो पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश की वासी है, हम उस देश की वासी है, किसी देश में गंगा बहती है। फोटो पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश की वासी है, हम उस देश की वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहना जो हमारा होता है, वो जान भी प्यारा होता है। मेहना जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा भी नहीं लालच है, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से कभी कुछ सहती है, हम उस देश की वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।
मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे हो, रोगी को नहीं पूजा हमने, रोगी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। लोगों में सच्चाई रहती है, जहाँ में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call our next guest of the day, Mr. Ajay Kumar. Please share his video. I think उनकी इंट्रोडक्शन वीडियो से पता चले तो वो ज्यादा मजेदार रहेगी इंस्टेड ऑफ मी। कि मैं घर के ऊपर बर्डन नहीं बनना था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। नमस्ते, मेरा नाम अजय राज है, मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं मेडिकल टर्म के हिसाब से 100% पैरालाइज्ड हूँ, मतलब कि गर्दन का नीचे का हिस्सा मैं बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे सपने कभी पैरालाइज नहीं हुए। जो मेरे सपने हैं वो हमेशा 110% स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और आज इस सपने के बदौलत ही मैं जो स्टॉक के मंच पे अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं बचपन से पैरालाइज नहीं था, मैं बचपन से आप जैसों की ज़िंदगी जी रहा था। मैं हंसता था, खेलता था, दौड़ता था, मैं बाइक चलाता था, मैं एक कराटा मैन था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराटे खेला था, स्टेट लेवल में मेरा होने वाला था। तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मैं 15 साल का था और 10वीं का एग्ज़ाम पास किया था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि लड़का बड़ा हो रहा है और 10th पास कर गया है, तो हो सकता है घर की जिम्मेदारियां आगे चल के जल्दी संभालना शुरू करेगा। लेकिन कुछ पता नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। 10वीं से 11वीं की ओर मैं बढ़ रहा था, लेकिन भगवान ने कुछ अलग सा रास्ता बना रखा था जो मुझे नहीं पता था। और एक रोज़ मैं अपने दोस्त के साथ, मेरे 3 दोस्त थे जो मेरे क्लोज थे, और मैं अपने दोस्त के साथ किसी दोस्त से मिलने गया था। आते वक्त ट्रक ड्राइवर ड्रंक किया हुआ था और सामने से हिट किया और मैं वहीं गिर गया। मैं ऐसे 2 से 3 घंटा सड़क पे पड़ा हुआ था। पास में एक मुझे याद है कि समोसे की दुकान थी, वहाँ से लोग दौड़कर आए भी तो कोई छूने को रेडी नहीं था। लोग देख के बस हट जा रहे थे, कोई रेडी नहीं था कि नहीं
पुलिस केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जिस ट्रक वाले ने धक्का मारा वो भी भाग गया था। बाई लक, बाई गॉड ग्रेस, उस दिन पुलिस राउंड करके आ रही थी। उन्होंने देखा मुझे और उन लोगों ने लेकर मुझे हॉस्पिटल में आए, जो गढ़वा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे जब मैं आया तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक्सरे कराना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं बेहोश था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं कुछ कुछ बोल भी रहा था, जो मुझे आज तक याद नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा था। Please, Ajay sir, share your views. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So first of all, good evening all and happy Independence Day. So thank you so much, Ritika ma'am and beloved Grace, for inviting, and thank you for giving an opportunity to prove myself and why I am here. So first of all, thank you so much and good evening, very good evening to all. So मैं, जैसा आपने देखा कि मैं जो स्टॉक पे आया और जो स्टॉक पे मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है। अगर आप पूरा सुनना चाहते हो तो आप YouTube पे देख सकते हो या मेरे चैनल पे जा सकते हो। लाइफ विथ C4 अजय राज के नाम से मेरा YouTube चैनल है, सो यू कैन गो देयर आल्सो। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं स्टार्ट से ये जो इवनिंग है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह की एक्टिविटी हो रही है और काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट हम इस इंडिपेंडेंस डे में, इस आज़ादी के दिन में आज हम 1 घंटा इसी बहाने हम साथ हैं। तो इस पल को खुशनुमा और स्पेशल बनाने के लिए वंस अगेन बिलवर्ड ग्रेस को थैंक यू सो मच, जो उन्होंने एक ओकेजन किया, एक इवेंट बनाया और आज हम एक सब साथ हैं। सो इस आज़ादी दिवस के दिन पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। देश तो हमारा आज़ाद है, लेकिन हम सब कहीं न कहीं अपने अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और हम सब उलझे हुए हैं। तो आज हम सब एक दूसरे को जानकर, हम एक दूसरे को सीखकर हमें ये सीखना चाहिए, हमें यह प्रयत्न रहना चाहिए कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं अपनी परेशानियों से। अगर हम एक दूसरे की परेशानी को देखें तो ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा परेशानी उससे कम है और एक दूसरे को देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने देश के आज़ादी के दिवस पे आज हम सब ये ठान सकते हैं कि हम अपने परेशानी से आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू अजय। आई थिंक अब ऑलिव गर्ल्स के बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं हमारा, और आई थिंक उनकी एनर्जी भी बूस्ट अप हो गई होगी। तो चलो देखते हैं इनका डांस परफॉर्मेंस अब सब मिलके। चरण चैरिटेबल ट्रस्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Your voice is not audible. I'm so sorry, but आपकी आवाज नहीं आ रही है. अगर अभी है Thank you so much, Sharan Charitable Trust. It was such an amazing performance. बहुत अच्छा लगा आपको डांस करते हुए देख के. ये जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है ना, ये हमें खुश कर रही है. तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल थुम्पा सर को, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल चैंपियनशिप में. आई होप कि अब प्लीज उनकी वीडियो प्ले करी जाए. मेरा नाम राहुल थुम्पा है एंड मैं BC3 कैटेगरी में बोशा इंडिया में इंटरनेशनल लेवल में गेम खेल चुका हूँ एशिया पैरागेम्स 2018 में. So before I had an accident, I was Navy second commanding officer. So after I had an accident on 2014, so I got completely disabled, and later on, I lost my all hopes and my all courages. So because there was no source of income and everything, so later on it was very hard to struggle being a disabled person to recover and be self-motivated. Slowly, I got to know from my friends and my colleagues that I can get work. So later on, I started finding jobs. I got recruited in Reliance, and later on after that, I got work for Reliance for 3 months. And but the salary was not stabilized. So I tried to find some other jobs in US. I got recruited on 2017 on December. I started working online from work from home. Later on, I started knowing about the game Borsha. On 2017, I played for nationals and I won gold. And on the next year, 2018, I won silver. Later on, I got selected on Asia Paragames 2018, and I participated and represented India in Asia Paragames and went to semi-finals. I'm hoping my best to win and play more games for India in next level.
and concentrating on 2022 for the next Asia Para Games and Commonwealth Games. So hoping for the best and Jai Hind. Now I would like to request Rahul sir, please share his views. पहली बात तो everyone happy Independence Day and Ritika ji, I especially thank you for inviting me. Actually I'm not the digital guy person. मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता. So I'm very preserved guy. I speak less. I show in action more. जैसे कृतिका जी ने बताया था, she was the first woman in para this one. I was the same first Indian to represent India in Asia Para Games in 2018. So I had never I had an idea that I would be representing in Asia such a big event. Later on, slowly I started. After winning the national medals, I got to into Asia. After that, I started getting inspired by many people, and many people tried to reach me. बहुत जन मुझे कोशिश करते थे कि पूछते थे कि राहुल भाई ये कैसे खेलना है, कैसे खेलना है. एंड तब मैं सोचता था मैं तो अभी अभी स्टार्ट किया, ये मेरे से पूछ रहे हैं. एंड मेरे को तब अच्छा लगने लगा. देन आई स्टार्टेड नोइंग, आई स्टार्टेड टॉकिंग. इससे पहले मैं बिल्कुल, रितिका जी मुझे जानते हैं, कितनी बार मुझे अप्रोच कर चुकी है. आई डोंट टॉक मच. उसके बाद से आई स्टार्टेड टॉकिंग मेनी पीपल. बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड थैंक यू टू एवरीवन कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया. एंड आई एम सो सॉरी आई कुडंट सिट प्रॉपर्ली बिकॉज अभी मेरे प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, उसमें मेरी बैक इंजरी हुई है एंड डॉक्टर ने 1 month बेड रेस्ट बोला है. And I will be performing in next Asia Para Games next year and Commonwealth Games. I hope may I make India proud and inspire more people to participate in international level and to make everyone reach their goals as far as possible. बहुत जन डिसेबल्ड होने के बाद मतलब होप्स छोड़ देते हैं. मैं भी छोड़ दिया था एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में इंजरी हुई थी, तो मैं काफी टूट गया था. एक्चुअली मैं तो मतलब जैसे अजय राज भाई है, वो भी मेरे साथ सेम ओशा में ही खेलते हैं. तो आफ्टर आई गॉट डिसेबल्ड आई वाज कंप्लीट इंजरी लाइक अजय भाई. बट आई डोंट नो, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस हुआ. आई वाज इनकम्प्लीट, ही वाज कंप्लीट. बट काफी एक्सरसाइजेस की वजह से आई स्टार्टेड गेटिंग इम्प्रूवमेंट्स. धीरे धीरे मेरे इम्प्रूवमेंट्स बढ़ने लगे थे. तो उधर से थोड़ा रे ऑफ होप आया कि मैं ठीक हो सकता हूँ. तो उसके बाद मैंने काफी एक्सरसाइजेस सब किया एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अदर्स कि भाई इवन बीइंग डिसेबल्ड आप लोग को जॉब मिल सकती है, आप लोग अच्छे से रह सकते हो. बीइंग जैसे अभी मैंने 3-4 जन का जॉब भी मैंने उनको लगवाया है. सो आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड आल्सो बाय लिसनिंग टू मेनी पीपल लाइक अजय भाई एंड कृतिका जी. एंड आल्सो आई ट्राई टू मोटिवेट आल्सो, क्योंकि बहुत जन लोग बोलने में विश्वास रखते हैं. मैं बोलने में विश्वास एकदम नहीं रखता, करने में विश्वास रखता हूँ. क्योंकि बोलने में तो बोल देते हैं, एक दिन बोल के भूल जाते हैं, लेकिन एक बार आप कर देते हो जो चीज़, वो आपके जहन में रह जाता है. तो मैं आप लोग सबको यही बोलूँगा, अगर आप डिसेबल्ड हो या आपके आसपास कोई भी है, तो उनसे आप एक बार बात कीजिए. नहीं तो आप अपने एक्शन से उनको करके दिखाइए कि आप लोग भी एबल्ड से भी यू आर मच मोर गिफ्टेड. डिसेबल्ड इज जस्ट अ वर्ड. अगर आप उसे स्प्लिट करोगे तो उसमें आई एम एबल्ड लिखेगा. तो आई होप एवरीवन will love me like this. And thank you Ritika ji once more. क्योंकि I don't know, मैंने कुछ स्पीच भी स्टडी नहीं किया. I am very nervous right now. And thank you so much for inviting me. I'm really loving it. Thank you so much. Thank you so much for accepting the invitation and coming onto our platform. We are really glad you shared our time with us. We know you're preparing and you're having injuries, and still you made time for us. So thank you once again. And trust me, you are not an introvert. You explained things very well to us. We were Actually, really सबसे शॉकिंग चीज थी, रितिका जी ने जब मुझे अप्रोच किया, आई वाज वेरी शाई टू रिप्लाई एक्चुअली. आप रितिका जी से पूछ सकते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता. But I don't know, after seeing Kritika ji saying about her injury level, I felt really good. I am very much honored to see you. And
आप जैसे even you were drowning and you survived and you showed everyone motivated. So that's a really inspiration. Hats off to you that. And I look forward to you and many people like you, जो even being disabled, they are motivating people. Maybe एक common था. I had no name, nothing before me, medal, कुछ नहीं था मेरे आगे पीछे. मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, ना फाइनेंशियली कुछ भी. मेरे पेरेंट्स बहुत टूट चुके थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था. I was into Navy. I was a second lieutenant commander. तो after I had an accident, I was completely broken. मुझे कोई support financially, physically कोई भी नहीं था. तो my mom was literally broken. सबसे ज़्यादा टूट गई थी मेरी मम्मी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स देखे थे एंड मैंने सारे ड्रीम्स उनको अचीव करके दिखाए थे बिफोर एक्सीडेंट कि I can be your best son as far as possible. But later on she used to regret कि क्यों हो गया एक्सीडेंट. उसके बाद जैसे मैंने जॉब अर्निंग करना चालू किया, she started getting a ray of hope like नहीं, राहुल जी सकता है, अगर उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा वो अकेले देख लेगा अपना. तो I1 जब मैंने इंटरनेशनल लेवल के लिए, जब मैंने मम्मा को पहली बार फोन करके बोला मॉम आई गॉट सेलेक्टेड टू एशिया पैरा गेम्स इन इंडोनेशिया 2018, तो शी वाज शॉक कि आप जाओगे कैसे. कि मैंने बोला एक्चुअली मैं व्हीलचेयर से इधर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन कृतिका जी ट्रांसफर हो सकती है, पर मैं मेरे ट्रंक के नीचे उतनी पावर नहीं है, ना फिंगर्स में एक्टिविटी है कि मैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ. तो मॉम बहुत डर गई थी कि तुम इतने दूर जाओगे कैसे, तुम्हारी देखभाल कैसी होगी. आई वाज स्केर्ड. पर मेरा जो कोच था जसप्रीत सिंह जी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. वो मेरी भगवान जैसे है. तो उन्होंने मेरा एक एक चीज छोटे बच्चे की तरह मुझे ख्याल रखा, शावर से लेके हर एक चीज, मेरा ड्रेसिंग, एवरीथिंग. ही केप्ट like his own son. and उन्होंने मुझे जो होप्स दिया, उनके वजह से मैं उतने दूर तक पहुंच पाया इंडियन एशिया गेम्स में. एंड जब मैंने पहली बार तिरंगा मेरे सीने में लगा था, जैसे कृतिका जी ने बताया, इट वाज अमेजिंग फीलिंग व्हेन you're representing इंडिया. उस टाइम तो मुझे कोई जानता नहीं था कि राहुल कौन है, कहाँ से आया है, वाइजैक से, कहाँ पे, हाउ डिड ही, व्हाट इज बोशा, किसी को कुछ पता नहीं था. लेकिन जब मैंने जीत के आया था, I went till semi-finals. I lost it, but I earned the respect of many people. क्योंकि semi-finals में first event में ही आप इतने दूर पहुंचना and आप इतने नाम आने के बाद इतने जन से प्रेरित होना and they come up look up to you कि राहुल भाई आपने इतना अच्छे से खेला. You teach me what is the techniques and everything. जो आपके पास, कृतिका जी के पास, मेरे पास, ऐसे बहुत जन, अजय राज भाई के पास भी जाते हैं. तो that is the thing I got inspired inside me. एंड आई थॉट लाइक नहीं, डिसेबल्ड होने के बाद भी मैं बहुत जन के लिए आई एम अ रोल मॉडल एंड आई कैन बी मोर दैन एवरीथिंग, जो नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते हैं एंड हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं. लेकिन बीइंग एन इंडियन एंड अचीविंग स्टिल देयर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. तो मैं रितिका जी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार जैसे होंगे तो इंस्पायर मोर पीपल, इनवाइटिंग लाइक दैट. इवन या स्टबर्न आल्सो, आप प्लीज अपना जो ये तरीका है, please don't leave it. I love it and thank you so much and Jai Hind. Thank you for your inspiring words, and it's a high time to thank you Samriti Rekha ma'am from Assam who support their children, and Robin sir for supporting their girls because they are truly amazing. Last, I would like to call Mr. Ritesh Agarwal. He is also representing India in scouting. Please share your views because he supported me throughout this program, and thanks to Shivam and Ritik who also technically support me. Please Ritesh sir, if you say something. Hi and good evening everyone. First of all, it feels really good to see when somebody is taking up some initiatives for all of us, because this Independence Day is for all of us and it's not limited to fixed categories of people. It's for all of us. It's a celebration for all of us. It's a love, joy, and like of course celebration for all of us. And organizing a program on the eve of Independence Day, a program like this is like truly inspiring and wonderful. I would like to congratulate the children and all the performers and all the invited guests who shared so inspiring stories. Because again, these stories somewhere जब हम टूट जाते हैं लाइफ में, जब हम
matlab when we feel of giving up on situations, these stories and these incidents, they teach us that no, it's like picture abhi baki hai and we should not give up. So thank you so much for inviting me to be a part. And of course, when Ritika invited me to be a part of this program, I thought that okay, I was really not sure kya hoga, kaise hoga. So I told her that okay, no problem, I will be there. And of course, I am not the person who have supported. There are two more people who have supported. You must have seen on screen, Ritik and Shivam, who have supported. So first of all, to the group, of course, Ritika and Mr. Suparan, Bharat Scouts and Guides, and the young people of Bharat Scouts and Guides are always there to support your initiative. Anytime, any initiative that you take up, please feel free to reach out to us, and our young people will be more than happy to be with you, to be with the programs and events. So that is a commitment from our end. And also, please keep inspiring. Please keep organizing such events, which not only inspires us, but which inspires almost everyone who is watching us live on Facebook and also who are there in this meeting. So thank you one and all. My best wishes to one and all. And once the situation normalizes, I really wish to be a part of some of the physical events that you are organizing. Thank you, beloved Grace, so much. Thank you for inviting me. Ritik, your support. Ritesh, Ritik, Shivam, all. Thank you, everyone. Now I would like to call Netra for the national anthem to wind up this program. Ritika ma'am ji, just one second. My wife, Professor Ruth, she is now presently posted in MM College as HOD English. She would like to say something. Sure. Hello everybody, and I'm so inspired and touched by the experiences listening to youngsters. And the only one thing I want to tell over here is there was a ray of hope beyond the mountain. You know, there was a ray of sunshine beyond the mountain, and these people went up till the mountain to catch hold of that ray of sunshine and ray of hope, and bringing meaning to their lives, and bringing meaning to the lives of so many people. And I definitely believe they have touched us, and they have touched the people around the world. And I want to share one poem. This is created by me on the occasion of Independence Day, and the title is about the flag, our national flag. Thank you so much, Ritika, for giving me an opportunity. Thank you so much. Watching tall pole, majestically beautiful, glorious, really glorious, a history was flowing, our precious flag, tri-color flag, telling us a story, a beautiful story of its past, a glorious past. With passion and fire, it was created. It was given a color, each color having magnificent, spectacular meaning, interpreted many images of past bygone days when it was created. It is worshipped today, it is respected today, it was respected yesterday, and it was worshipped yesterday, as three colors were beautifully sewed together with one thread, strongly stitched. It does not tear apart. Just think and just speculate why and for cause it was created, to give an image of unity and strength. But today, what has happened? A new story, a history, a new history. It's getting created. This flag sewed together is being unsewed today. Some want saffron, some want white, some want green, giving their own interpretations of these colors, their own thinking. What will happen? How will we keep it safe? Oh, my Indian brethren, please don't pull its thread. Just remember, its cause to be made, which was an image of unity and strength. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.
Actually, I just have 2 minutes for winding up this program because that's why I just said. Please sang a national anthem. Hello. Hello. No, you are audible. Okay. मैं नेशनल एंथम स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सबको मेरी परफॉर्मेंस, मेरा सॉन्ग अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नेत्रा टिक्कू के नाम से है। मेरे नाम के स्पेलिंग है NETRATICK और फेसबुक पे आपको राइजिंग रॉक स्टार नेत्रा टिक्कू के नाम से मिल जाऊंगी। सो प्लीज जाके फॉलो कर देना मुझे अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। तो अब मैं नेशनल एंथम स्टार्ट कर रही हूँ। Yeah, start. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सव चलती तरंगा, अब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जया गाथा, जन गण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। Support and take initiative. Depend